Hello, my dear friends. Welcome to Dream UGC Net. I hope you all are doing great and doing your preparation at the next level and maintaining consistency. Here I am with the video on important MCQs, Paper 2, Labor Welfare and HRM Code 55. So you can download my app, that is Dream UGC Net, from the Google Play Store, and you can download it from the given link below in the description box. So from my app, that is Dream UGC Net, you can get the complete course that is going to be start on or from August. Paper 1 and paper 2, the course is going to be paper 1 and paper 2. Paper 2 Labor Welfare and HRM, and the exam or the course is going to be for December 2022 cycle. Complete detailed course you will get with mock test, free material, doubt classes you will going to be have, two-way interaction will be there, and most important, that course is going to be in your budget. So without further ado, without any second thought, you can download my app from the Google Play Store, that is Dream UGC Net. So without further ado, let's get started. So question number 1, which of the following is the correct sequence of process of collective bargaining? You have to find the answer, that is sequence of process of collective bargaining. Option A, bargaining, negotiation, proposal, preparation, final agreement. Option B, proposal, bargaining, final agreement, preparation, discussion. Option C, preparation, discussion, proposal, bargaining, final agreement. Option D, none of these. So your answer is option C, that is preparation, discussion, proposal, बार्गेनिंग, फाइनल एग्रीमेंट. सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं, देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. आफ्टर डिस्कशन हम प्रपोजल यानी कि वी पुट द प्रपोजल, देन हम उस प्रपोजल पे बार्गेनिंग करते हैं. आफ्टर बार्गेनिंग वी रीच द फाइनल एग्रीमेंट. ओके, इसका सबसे सिंपल वे है कि आप पहले ये देखें कि हम करते क्या हैं. ऑप्शंस में देखिए, सबसे पहले हम प्रिपरेशन ही करते, किसी भी चीज़ की आप सबसे पहले प्रिपरेशन करोगे, लास्ट आपका फाइनल एग्रीमेंट ही होना चाहिए. तो ये और ये पॉइंट तो हो गया. अब ये देखिए, आफ्टर प्रिपरेशन आप क्या करोगे, डिस्कशन, ऑब्वियसली डिस्कशन करोगे. तो एक ट्रिक से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. इफ़ यू डोंट रीड द टॉपिक, आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन आप आंसर फाइंड आउट इस तरीके से कर सकते हो. ओके, so let's take the question number 2. Question number 2, okay, here is the types of collective bargaining. Types of collective bargaining, there is 4 types. Conjunctive और distributive bargaining. Distributive bargaining को ही हम conjunctive bargaining भी कहते हैं. Cooperative और integrative bargaining, it is 2 name, integrative और cooperative. We can call integrative cooperative also, right? Productivity bargaining, composite bargaining. So types of bargaining, conjunctive और distributive bargaining क्या होता है, where both parties by try to maximize their respective gains, यानी कि दोनों पार्टी अपना अपना फ़ायदा करने की पूरी कोशिश करते हैं. Cooperative bargaining, where both parties yield ground to the other to get ahead and resolve नोटली इश्यूज़. कोऑपरेटिव बार्गेनिंग में ये होता है कि वो एक दूसरे की बात के लिए राजी हो जाते हैं कि आप विन विन सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं. तो एक दोनों की सहमति, दोनों पार्टीज़ की सहमति के साथ, दोनों पार्टीज़ के एग्रीमेंट के साथ वो फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं. तो विन विन सॉल्यूशन होता है. प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग क्या होता है, वेयर द वेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स आर लिंक्ड टू प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, जहाँ पे वर्कर्स की वेजेस डिपेंड करते हैं द प्रोडक्टिविटी, यानी कि द प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन उतने वेजेस और बेनिफिट्स टू द वर्कर्स. कंपोजिट बार्गेनिंग में क्या होता है, जहाँ पे लेबर बार्गेन नॉट ओनली फॉर वेजेस बट गोज अ स्टेप फर्दर एंड डिमांड्स इक्विटी इन ऑर्डर इन अदर मैटर्स रिलेटिंग टू वर्क नॉर्म्स. ओके,
प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में तो सिर्फ उनको वेजेस मिलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। बट कंपोजिट बार्गेनिंग एक स्टेप आगे है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग से। प्रोडक्टिव कंपोजिट बार्गेनिंग में वो इक्विटी यानी कि वो बराबर का हिस्सा, वो इक्विटी और इक्विटी की डिमांड रखते हैं कि जो भी रूल्स और नॉर्म्स हो सबके लिए इक्वल हो, राइट। So I hope it is clear. If it is not clear, please mention in the below comment section if you have any doubt in this. Let's take the question number 3. Question number 2, sorry. Who coined the concept of collective bargaining? Option A, John Dunlop. Option B, Hugo Mansberg. Option C, Karl Marx. Option D, Sidney and Beatrice Webb. So your answer is, कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सिडनी एंड बियर्टिस वेब ने। हु कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग? सिडनी एंड बियर्टिस वेब। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 3. योर क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग कॉल्ड बाय अनदर नेम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 0-0 बार्गेनिंग, 0 सम बार्गेनिंग, 1-0 बार्गेनिंग, 1-1 बार्गेनिंग। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का एक नेम तो होता है कंजक्टिव बार्गेनिंग, थर्ड नेम भी होता है इसका। वो नेम क्या है जिससे हम इसको बुलाते हैं? वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होती है कि दोनों पार्टीज पूरा जोर लगाती है कि वो जीते, उसका एग्रीमेंट जीते, उसकी बात जीते, उसकी बात पर सहमति हो, और दूसरी पार्टी भी पूरा जोर लगाती है कि उसकी बात पे सहमति हो, उसकी बात पे एग्रीमेंट, फाइनल डिसीजन हो। तो क्या है ये? 0-0 बार्गेनिंग है या 0 सम बार्गेनिंग है या 1-0 बार्गेनिंग है या 1-1 बार्गेनिंग है? लेट्स चेक द आंसर. योर आंसर इज 0 सम बार्गेनिंग. इसे हम 0 सम बार्गेनिंग कहते हैं. ओके, लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 4. मैच द अप्रोचेस विथ देयर प्रोफाउंडर्स इफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. यानी कि अप्रोचेस हैं उसके प्रोफाउंडर से आपको मैच करना है. प्लूरलिस्ट अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, गांधीयन अप्रोच एंड रेडिकल अप्रोच. प्रोफाउंडर्स आर देयर महात्मा गांधी, जॉन आर कॉमन्स, कार्ल मैक्स और जॉन डनलॉप. लेट्स सी द ऑप्शंस ऑफ आंसर. ऑप्शंस आर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फोर्थ 1, सेकंड, फोर्थ 1, थर्ड 1, second, third, fourth, third, first, second और fourth. Let's see the question again. प्लूरलिस्ट अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, गांधीयन अप्रोच और रेडिकल अप्रोच. देखिए, गांधीयन अप्रोच सिंपल दिखाई दे रहा है. ऑप्शन फर्स्ट है महात्मा गांधी. इसकी हेल्प से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. यानी कि सी का फर्स्ट किस में गिवन है? सी का फर्स्ट किस में गिवन है? सिर्फ सेकंड में गिवन था, दैट इज बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट. ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड. देखते हैं हम आंसर. ए का सेकंड, प्लूरलिस्ट अप्रोच गिवन बाय जॉन आर कॉमन्स, सिस्टम अप्रोच गिवन बाय जॉन डनलप, गांधीयन अप्रोच महात्मा गांधी, रेडिकल अप्रोच कार्ल मार्क्स. I hope it is clear. Let's take the question number 5. Which of the following is not the type of collective bargaining? Okay. Option A, productive bargaining. Option C, composite bargaining. Option D, distributive bargaining. Option D, international bargaining. So, which one is not the type of collective bargaining? You know, अभी मैंने ही लास्ट क्वेश्चंस में अभी बताया था, एक चार्ट बताया था जिसमें कि गिवन था कि 4 टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. सो उनके नेम थे. सो लेट्स चेक द आंसर. आई होप यू नो द आंसर. योर आंसर इज इंटरनेशनल बार्गेनिंग. सो कौन कौन से बार्गेनिंग है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है, कंपोजिट बार्गेनिंग है, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग है, एंड द लास्ट बार्गेनिंग विच इज more advanced than productivity bargaining is called, yes, try to answer the question.
Yes, your time is up. So answer is integrative bargaining. Fourth one is integrative bargaining. There is 4 type of collective bargaining, that is distributive bargaining, integrative bargaining, productive bargaining and composite bargaining. I hope it is clear. Let's take the question number 6. To constitute a work committee, number of employees are required. तो work committee में कितने number of employees चाहिए? Option A 50 or more, option B 150 or less, option C 100 or more, option D none of these. So your answer is 100 or more. To constitute a work committee, number of employees are required 100 or more. I hope it is clear. Question number 7. The objective of workers' participation in management do not ordinarily include. यानी कि जो वर्कर पार्टिसिपेशन के ऑब्जेक्टिव हैं इनमें से वो कौन सा नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो ऑप्शन ए है प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, बी है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल हार्मोनी, सी प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी promotion of productivity. So your answer is promotion of collective bargaining. वर्कर्स पार्टिसिपेशन का काम है इंडस्ट्रियल हार्मोनी प्रमोशन करना, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए प्रमोशन करना, प्रमोट ऑफ प्रोडक्टिविटी. बट कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन. प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट? कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रमोशन नहीं करती है. I hope it is clear. Question number, okay, it's a mistake in questions. Okay, right, clear. यहाँ क्वेश्चन नंबर्स में मिस्टेक है, बट ऑल राइट, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन है अंडर हुज रिजाइम एज यूनियन लेबर मिनिस्टर मेजोरिटी ऑफ कोर्ट्स वर एंड इवॉल्व्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. किसके रिजाइम में यूनियन लेबर मिनिस्टर, कौन से यूनियन लेबर मिनिस्टर के अंडर जो मेजोरिटी ऑफ कोर्ट्स थे वो इवॉल्व हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? ए वी ग्री, बी गुलजारी लाल नंदा, सी हनुभाई देसाई, डी बिंदेश्वरी देवी. आपको आंसर वैसे शो हो गया, तो योर आंसर इज गुलजारी लाल नंदा. याद रखना, गुलजारी लाल नंदा के अंडर जब यूनियन लेबर मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा, तब उनके टाइम पे मेजोरिटी ऑफ कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आए थे, राइट? तो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट? कौन सा मोड नहीं है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का? ऑप्शन ए वर्क कमिटी, ऑप्शन बी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ऑप्शन सी जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, ऑप्शन डी जॉइंट कमिटी ऑफ फॉर पॉलिसी. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का कोई लेना देना नहीं है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट से. सो आपके आंसर्स हैं वर्क कमिटी, जॉइंट मैनेजमेंट JMC, दैट इज जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, एंड जॉइंट कमिटी फॉर पॉलिसी, राइट? ओके, लेट्स टेक द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है. असर्शन है इन रियल टर्म्स वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हैज़ फेल्ड इन इंडिया. रीजनिंग है, रीज़न है because there is lack of attitudinal change, multiplicity of unions and absence of a procedure to determine a solo bargaining. Okay, option A is correct, R is incorrect. R is correct explanation of A. Sorry, A is correct and R is correct explanation of A. A is correct but R is not the correct explanation of B. A is correct but R is incorrect. A is incorrect but R is correct. So your answer is both are correct and reason is correct explanation of E. In real term, workers' participation in management has failed in India. क्योंकि because there is a lack of attitudinal change. ये जो reason है वो एक correct explanation जो दे रहा है, इसका link हो रहा है हमारे assertion से. मतलब कि बिल्कुल out of the way नहीं है कि आप
भाई रीज़न कुछ और, असर्शन कुछ और, तो ऐसा नहीं है, ये लिंक है। तो आप कह सकते हो कि ए इज़ करेक्ट और आर भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। लेट्स टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अंडर विच पॉलिसी एम्प्लॉयज़ आर फ्री टू मीट द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट देयर ग्रीवेंस रिड्रेस्ड। कौन सी पॉलिसी में, देखो हिंट है, कीवर्ड है आपके क्वेश्चन में ही है। सो ऑप्शंस आर ए ओपन डोर पॉलिसी, बी स्टेप लैडर पॉलिसी, सी ओपन कम्युनिकेशन पॉलिसी, डी कलेक्टिव बार्गेनिंग पॉलिसी। फ्री टू मीट द टॉप एग्जीक्यूटिव, ऐसी कौन सी पॉलिसी जिसमें एम्प्लॉयज़ को परमिशन है, अलाउड है, वो डायरेक्ट हायर अथॉरिटी से मीट कर सकती है, अपने ग्रीवेंसेस जो भी हैं उनके ग्रीवेंसेस हैं वो डायरेक्ट हायर अथॉरिटी के पास जा सकती है लेके। तो वो कौन सी पॉलिसी है? तो योर आंसर इज ओपन डोर पॉलिसी। Okay, that was the last question, but not the least. I hope you all understand the questions. All questions are clear to you. So, if you have any doubt, please mention in the below comment section. I will definitely help you out from the doubts. Right now, thank you all for watching the complete video and take care. Bye bye.